أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Allah, there is no deity except Him, the ever-living, the sustainer of all existence. Neither drowsiness overtakes Him, nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with Him, except by His permission? He knows what is presently before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge, except for what He wills. His throne extends over the heavens and on the earth, and He is never weary of preserving them. He is the sublime, the tremendous. Sadaqallahu al-Azim. His Excellency Ha Lifang. 请何副总理起身前行至红毯处。 His Excellency Mr. Ha Lifang is currently serving as the Vice Premier of the State Council. He is also a member of the Politburo of the Communist Party of China. Vice Premier has previously served as Vice Chairman of the CPPCC National Committee, the Chairman and Party Secretary of National Development and Reform Commission of China. The Commission not only organizes the implementation of strategies and plans for economic and social development, but also promotes the joint constitutional implementation of the Belt and Road Initiative. Born in 1955, Mr. Ha Lifang studied finance at the reputed Xiamen University and gained a doctorate in economics in 1998. He began his political career in Fujian province, where he served in important positions, including as the party secretary of Fujian and Xiamen cities. Mr. Ha Lifang later served as the party secretary of Binhai New Area and Deputy Secretary of Tianjin Municipality and Chairman of the Tianjin People's Political Consultative Conference. Mr. Ha Lifang is a great friend of Pakistan and is an ardent advocate of Pakistan-China friendship. As the Chairman of NDRC, he oversaw the planning of the 1+4 cooperation model under CPEC, with a greater focus on industrialization and socio-economic development of Pakistan. Under his leadership, NDRC worked with the Ministry of Planning, Development and Special Initiatives of Pakistan for the implementation of major energy, transport and connectivity projects of CPEC. In recognition of his services towards Pakistan and for promoting China-Pakistan Economic Corridor, the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to confer Hilal-e-Pakistan on Mr. Ha Lifang. Mr. President, may I request you to decorate the award of Hilal-e-Pakistan
upon His Excellency Fan Lifang. 请何副总理走上授勋仪式台。Mr. President, may I have your permission to close the investiture ceremony? 总统先生，请允许我宣布仪式结束。 Thank you, distinguished guests. The formal proceedings of the special investiture ceremony are now over. The guests are requested to proceed to Liaquat Hall for refreshment, please. Thank you. ईवान सदर में चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म को हिलाले पाकिस्तान देने की यह तकरीब थी। बड़े एजाज़ से नवाजा गया। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म को सदर मुमलिकत ने चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म को हिलाले पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब ईवान सदर में शेड्यूल हुई है। आपको बताएं कि सिविल अवार्ड हिलाले पाकिस्तान से गैर मुल्की शख्सियात को नवाजा जाता है। हिलाले पाकिस्तान अवार्ड पाकिस्तानी वफात में काबिल कदर खदमात के एतराफ़ में अता किया जाता है। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की मफाद में काबिल कदर खदमात हैं और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन के तौर पर पाकिस्तान में CPEC मनसूबों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा किया है। तो ऐवान सदर में ये तकरीब थी। ऐवान सदर में चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म को हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया है। अभी आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद में। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसियत तारड़ मीडिया से बात कर रहे हैं। नंबर 3, मेरे पे 100 से ज़ायद केस हैं। मैं इस केस पे तवज्जो नहीं दे सका। पहला सवाल क्या है कि क्या फॉर्म बी आपका है? उसका जवाब हाँ या ना में आता है। अब मुझे तो अपने फॉर्म बी पे हाँ या ना जवाब देने के लिए किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जवाब दे सकता हूँ कि हाँ ये फॉर्म बी मेरा है। अगर सवाल करेंगे कि क्या ये टैक्स रिटर्न्स आपकी हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई थी, इसका जवाब हाँ या ना में आना है। इसमें कोई तकनीकी मामला नहीं है। केस जब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल है, इस तरह के हीले बहाने, वो बच्चे नहीं कहते कि जी वो बिल्ली मेरा होमवर्क खा गई थी, मैं होमवर्क नहीं कर सका, उस पर पानी गिर गया था। इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं अदालत के रूबरू। मामला तोशाखाना चोरी का है। क्या चोरी की है? अगर की है तो फिर वो तोहफे जो थे वो डिक्लेयर क्यों नहीं किए? और जो रकम उनसे मिली वो आपके अकाउंट में रकूम से मुताबिकत क्यों नहीं रखती? आपने ये स्टेटमेंट देनी है। ये वाहिद ट्रायल कोर्ट का केस है जिसको ट्रायल कोर्ट ने 2 मरतबा इनकी दरख्वास्त ट्रायल को रोकने की मुस्तरद की। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मरतबा ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद की। फिर 1 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद की। क्योंकि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, ये केस हतमी मराहिल में दाखिल है, तो इसलिए बहानेबाजी की जा रही है। अदालत से राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। आज न्याजी साहब के चेहरे पे घबराहट है। कहा करते थे घबराना नहीं है, शदीद घबराहट है। आज जवाब देने को कोई नहीं है। आज बहाने किए जा रहे हैं कि मुझे तो कल सवालनामा मिला, मैं तो अकाउंटेंट से बात नहीं कर सका, मैं तो फलां नहीं कर सका, मैं तो ढमका नहीं कर सका। क्या आपको पता नहीं था कि 11 माह से ये केस चल रहा है? आपको सुप्रीम कोर्ट जाना आज याद आया और मैं हैरान हूं कि बशीर की, अहमद की, बूटे की दरख्वास्त पे तो नंबर अलॉट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कैसी दरख्वास्त है कि सुबह आई है और दोपहर को नंबर अलॉट हो गया? अब ये तमाम नजरें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगाई हैं। इसमें इसका कसूर नहीं है। जिस मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड के दौरान रिहाई मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, उसका तो बार बार दिल करेगा, उसका जी चाहेगा कि मुझे रोज रोज ऐसी इनायात करामात मेरे पर हो, मुझे रोज बुलाया जाए और कहा जाए गुड टू सी यू, क्या खूब लग रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ट्रायल कोर्ट से आ रहे हैं, जाएं माफ किया। इस तरह का मामला नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट को बार बार रोकना, बहानेबाजी करना, जवाब ना देना। अब आपकी 342 की स्टेटमेंट है जो तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद होने के बाद, दोनों साइडों की जिरा मुकम्मल होने के बाद मुल्जिम को मौका दिया जाता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे।
अगर आपके पास सफाई में कहने को कुछ नहीं है बहानों के अलावा, तो फिर तो ये केस खत्म हो जाना चाहिए और कोई ना कोई फैसला इसका हो जाना चाहिए, वरना इसका अंजाम भी वही होगा कि 6 साल फॉरेन फंडिंग का केस चला। अब ना कोई बहाना है ना कोई उज़र है, आपने अपनी सफाई में जो कहना है वो कह चुके हैं। बार बार आपके वकील भागते हैं दरखास्तें बना के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी जिसको वो लाडलापन का दर्जा हासिल नहीं है न्याजी की तरह, उसका ट्रायल चल रहा हो, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि जब उसको सज़ा हो जाए वो तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, दर्जा ब दर्जा सज़ा की अपील होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में होती है। ये वाहिद केस है जहाँ पे ट्रायल के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाया जा रहा है। ये वाहिद केस है जहाँ पे ट्रायल के दौरान 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। आला अदलिया क्यों मुदाखलत करती है इन केसेस के अंदर? तोशा खाना का ओपन एंड शट केस है। एक मुल्जिम जो 342 की स्टेटमेंट जो अपनी दिफा में सफाई का जो आखिरी हक हासिल है वो अवेल नहीं करना चाहता, वो अपनी सफाई नहीं देना चाहता, वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराना चाह रहा, इसलिए बहानेबाजी से काम ले रहा है। और इस तरह के फजूल बहाने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी ने नहीं लगाए होंगे कि मेरी अकाउंटेंट से बात नहीं हो रही। मुझे कल सवालनामा आपका मौसूल हुआ है। आला अदलिया की मुदाखलत बार बार करवाने की जो कोशिश की जा रही है, इसको पता है कि ये चोर है, पता है कि तोशा खाना की चोरी की है, तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, पता है कि जो अली जफ़र, अब देखें अली जफ़र साहब इनके वकील हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग में माना कि हमने ये तोहफे बेचे हैं, माना कि तोहफे बेच के रकूम हासिल करके बैंक अल-फलाह के अकाउंट में जमा कराई है। अब वो जो अकाउंट है उसमें उतनी रकम आई नहीं जितनी क्लेम की जा रही है। अली जफ़र साहब हमारे वकील तो नहीं हैं, उनके इतराफ़ी बयान मौजूद हैं। तो अब 11 माह आपने, ये इतना सा ट्रायल था, ये 3 महीने से ऊपर का ट्रायल नहीं था तोशा खाना का, आपने 11 माह चलाया टेक्निकलिटी पे खेल के कि मैंने चोरी का जवाब नहीं देना, मैंने नॉन डिक्लेरेशन का जवाब नहीं देना, मैंने एहसासे छुपाए हैं, मैं जवाब देने से कासिर हूँ, जो अकाउंट में पैसे आए वो कम क्यों आए मैं बताने से कासिर हूँ। मगर आज फिर वही रविश है कि आप मेरिट पे केस आर्ग्यू नहीं करवाना चाहते, तकनीकी बुनियादों पे इसको एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए ताखीर का शिकार करना चाहते हैं, इसको डिले करना चाहते हैं ताकि आप सज़ा से बच सकें, ताकि ये कोर्ट फैसला करे ही कोई ना। यानी आपके पास सफाई में अगर कहने को कुछ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में क्या दरख्वास्त दे रहे हैं, हमें जज पे एतमाद नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि हम ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का फैसला करेंगे, अभी वो फैसला मुकम्मल तौर पे नहीं आया, वो इंटरम फैसला आया है। उस इंटरम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, नंबर अलॉट हो गया। एक आम आदमी की इंटरम रिलीफ के खिलाफ दरख्वास्त या इंटरम ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त तो एंटरटेन नहीं होती, तो इनकी दरख्वास्त कैसे एंटरटेन हो रही है? और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि क्योंकि चोरी साबित शुदा है और मुल्जिम के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं है और तोशा खाना के तहफ़ लिए भी हैं, डिक्लेयर भी नहीं किए, बेचे भी हैं, बेच के जो रकम हासिल हुई वो खाई भी है, इसलिए ट्रायल कोर्ट से खौफ है कि हमने मुकदमा यहाँ नहीं सुनने देना, हमने हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, उनको कभी एक तकनीकी बुनियादों पे नुक्ते पे फंसाना है, कभी दूसरे नुक्ते पे फंसाना है। तकनीकी बुनियादों के अलावा आला अदलिया में जाने का कोई जवाब नहीं है। इतनी सी बहादुरी होती, इतनी सी दिलेरी होती, या इतना सा खौफ खुदा होता, या इतनी सी गैरत होती, तो आज मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू करते, मेरिट पे बताते कि चोरी हुई है कि नहीं हुई। इस तरह के फजूल बहाने करके राह फरार इख्तियार करके आला अदलिया का दरवाज़ा ना खटखटाते। क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि जो आखिरी मौका है अपने सफाई में, अपने हक में एक स्टेटमेंट देने का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है स्टे दे दें, और आज किस हैसियत से इनके वकला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिले? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये फैसिलिटी, क्या ये सहूलत तमाम तर जो साइलीन हैं उनके वकला को हासिल है? क्या किसी भी साइल का वकील उठ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटा के अंदर जाके रिलीफ की सदा कर सकता है?
क्या इस कोर्ट में मौजूद तमाम साइलीन उनको कहा जाए कि वो अपने वकला को कहें कि आओ सुप्रीम कोर्ट चलें और चीफ जस्टिस से टाइम मांगें और चीफ जस्टिस से मुदाखलत की दरख्वास्त करें? क्या जब केस अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका हो और ऐसा दाखिल हो चुका हो कि मुल्जिम की जो आखिरी एक स्टेटमेंट है सफाई की वो दाखिल होनी हो, उस स्टेज पे क्या चीफ जस्टिस से मुलाकात करके ये इस्तदा जायज़ तौर पे की जा सकती है मुदाखलत की? किस हैसियत में इनके वकला चीफ जस्टिस को मिले और क्यों मिले, और चीफ जस्टिस ने इनसे मिलने से इनकार क्यों ना किया? और अगर ये केस इस स्टेज पे है तो इनको जज पे अदम एतमाद अब याद आया कि जब केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है? क्या इनको चीफ जस्टिस से मुलाकात अब याद आई? क्या तमाम साइलीन की दरखास्तें सुबह दायर हों दोपहर नंबर लग जाता है? और क्या उनके वकला को चीफ जस्टिस के चेंबर में बुलवा कर मिलवाया जाता है? एक ऐसा अंडर ट्रायल अक्यूज्ड, एक ऐसा मुल्जिम जिसका मुकदमा ज़ेरे समात है, उसके वकीलों का चीफ जस्टिस से मुलाकात कर